Hello, dear students. I'm sure you must have selected your topic for the projects and you must have started working on one of them. So, I've uploaded previous video which had got a lot of defects. So, I thought of making another one whereby I can explain you the entire process of doing this project and completion of this project. So let us begin from the first step. Step 1 is selection of a topic. So I have given you 10 topics. Our theme is 75 years of independence and Mumbai city, memories and changes. Within that I have given you 10 topics. I'll read them one by one, and what roughly you are expected to do in this I'll tell you. First is role of Bombay in freedom struggle. So when you are doing this topic, in this you have to conceptualize the role of this city right from the beginning. Mumbai had been the center of the one of the prominent centers of the freedom struggle. So that aspect you have to highlight, like foundation of Congress, starting of various other non-governmental efforts. So that you have to conceptualize. The role of leaders, various businessmen and leaders who have participated in freedom movement from this city, various movements that were launched from this city. So all those things you need to cover in your project. That will give you a clear idea about role of Bombay in freedom struggle. Second is culture and economy during mill era in Bombay. So we know that in the beginning of 19th century, the mills were established in Mumbai, in various parts of the city, and their numbers increased gradually. It employed lakhs of people. So the mills were not just a commercial centers, not just a center of production of textile and other materials, but it also gave birth to a kind of culture around it. In Giran Gaon, in today's Parel area, Lalbagh area, Dadar area, it gave birth to a culture, a distinct community where people from different part of the country would come together, would live together, and a different chawl culture, different mill culture existed. So you have to study that a bit. There's lot of literature available. Films are made like Lalbagh Parul, City of Gold. So you can watch one of them to get an idea about the life during mills and role of mills and mill workers leaders who contributed in freedom struggles, like Babu Genu, who laid down his life, who was martyred in one of the Swadeshi movement. Third topic is any famous leader from Bombay participated in freedom movement. We know that Mumbai gave lot of leaders who led the freedom struggle at national level. So we know few of them, very famous names like Lokmanya Tilak, Mahatma Gandhi, Veer Savarkar. They are known faces, but there are a lot of unknown faces or lesser known faces which you can cover in this topic, like role of Achitra Patwardhan, role of Hansa Ben Mehta, role of Yusuf Meher Ali, role of Feroz Shah Mehta, role of Nana Shankar Sheth. So their role you can cover. You can select one of the leader and discuss about their particular activism and their particular role in the freedom movement. Fourth is history of August Kranti in Bombay. We know that on 9th August Kranti movement was launched by Mahatma Gandhi from Gwalior tank, which is known as August Kranti Maidan. So what is August Kranti Maidan? What was its objective? Who led that? How it was carried forward? What was its result? That all you can cover in this particular topic. Then role of Bombay in Swadeshi movement. As I told you, Swadeshi movement took its roots in Bombay city. It became very strong when indigenous production was promoted, when mills have started producing cloths here, when Gandhiji has gave an appeal for spinning wheel, that is charkha, to make country self-reliant and self-sufficient. That was Swadeshi movement, boycotting with
Manchester made cloths, boycotting the foreign goods, especially British. So Bombay city was very active during this movement as well. Lot of boycotts, lot of protests, picketings, gheravs were done by the leaders and activists in Bombay city. That you can cover in this topic. Then we have sixth, Bombay and nationalist movement. So here overall role of Bombay city right from the beginning till 1947, role of Bombay city in the nationalist movement, in the freedom movement. That part you have to cover. It's a bit general topic. Here you can cover a lot of things: role of leaders, the movements launched from Bombay, the activities that were done in Bombay, Congress Party's foundation in Bombay and their leaders, their participation in administration of Bombay city. Everything you can cover in this topic. It is a bit general topic. Then role and status of scheduled caste and scheduled tribe. So while discussing freedom movement, we often cover just the very highlighted part of the people or a few leader only. So here we are trying to emphasize upon covering the role of these subaltern sections of the society, the people who were either behind the curtain or who were not known or who could not come forth, or till the arrival of Dr. Bhimrao Ambedkar, the role of scheduled caste, scheduled tribe and their voice was not recognized. So you have to start from that phase and enter the phase led by Dr. B.R. Ambedkar. Narayan Meghji Lokhande had organized a first trade union of its kind, which also gave voice to SC/ST activists and leaders. So that part you can cover in this. It is very interesting topic, very interesting study if you conduct it seriously. Then role of women from Bombay in freedom struggle. This is again very important and very interesting topic. Lot of women participated in freedom movement through both in non-violent movement led by Mahatma Gandhi as well as in armed struggle in violent movement, you can see it. Women played very active role. So their particular role you can highlight, and I suggest that maximum students to work on this topic, because we need to know the women of this city, the women who fought for the country, and they may be lesser known or they may not be so much popular, but their role was very crucial. So please consider this topic also. Ninth is disaster management and planning in Bombay during British era. When British made Bombay a municipal corporation, they have started planning disaster management as well. In many places, when you walk around the streets and roads, you might notice a small red color pillar or a small pole. It's hardly 2 to 2.5 feet tall. So you may notice a lot of lamp posts. Study the drainage system that British introduced in Mumbai city. So their disaster management concept around the bridges, buildings, roads, localities, mills that British have introduced, that we can study, whereby we can come to know about this city, and also we can come to know that what techniques they used and whether it is relevant or we need any upgradation in that infrastructure or not. Then finally, science and superstition in Mumbai city. This is another very interesting and bit challenging topic. See, wherever human society lives, human being live, they always their religious values, social values, cultural values, it motivates them sometimes towards superstitions. Sometimes due to lack of knowledge, due to lack of proper education, due to lack of proper counseling, people fall prey to superstitions. So whereas Mumbai is a world class city, it's a city known for its scientific, rational and secular thinking, but on the other hand, in almost in every religion we find existence of superstitions and participation of same Mumbaikars in all those activities.
So that part you can study, and how it is affecting people, how it is harmful to the people, that you can study. So this is overall about the topics, 10 topics which you can you must have selected either one of them. So this is the pattern and framework in which you can study. Now many students asked whether we should submit PPT or PDF or convert PDF of PPT. So let me tell you, I'm happy that you got all these questions. This is beginning of your research work in your life. So take it very seriously. Whenever we take any topic for research, first of all give it a thought. What the topic is all about? What am I going to explore into it? What are the parameters I am going to set? What are my hypotheses? If you don't want to explore that much कि मुझे hypothesis वगैरह अभी नहीं समझता, रिसर्च क्वेश्चंस आप फ्रेम कर लो कि कौन से क्वेश्चंस हैं. आप जो टॉपिक ले उसमें 4-5 क्वेश्चन खुद से फ्रेम करो कि मुझे देखना है कि यहाँ बॉम्बे के कौन से सब प्रोमिनेंट लीडर्स हुए, उनमें से सबसे इफ़ेक्टिव इन्फ्लुएंशियल कौन हुआ, उन लीडर्स में से भी कौन ऐसा लीडर था जिसको पब्लिक कम जानती है और मेरे रिसर्च के माध्यम से मुझे आगे लेकर आना है. तो ये चीज़ आप प्लान कर सकते. सो गिव इट अ थॉट. खुद से क्वेश्चन फ्रेम करो कि मैं कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं दैट आई एम गोइंग टू कवर इन माई रिसर्च टॉपिक. दैट इज़ वन थिंग before you start. Then second step is, let us study the topic, let us gather knowledge about it. तो वो नॉलेज आप बुक से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से, यूट्यूब से, देयर आर वेरियस सोर्सेस जहाँ से आप ये सारी जानकारियाँ उस अपने पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जुटा सकते हैं. आप टीचर्स से अपने कंसल्ट कर सकते हैं, फ्रेंड से कंसल्ट कर सकते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन को जॉट डाउन करते जाओ, गैदर करते जाओ एक जगह, एक फाइल के रूप में एक जगह रखते जाओ. अब ये सब कुछ कर लेने के बाद सेकेंड स्टेप पर आपका थर्ड स्टेप है कि आप फिल्टर करो कि आपके टॉपिक के लिए जो मटेरियल आपने इकट्ठा किया है उनमें से क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है. फिल्टर करने के बाद आपके पास आपकी स्टडी का टॉपिक आ जाएगा. कुछ प्रोजेक्ट में अगर आपको कोई सर्वे करना, वैसे सर्वे बेस्ड टॉपिक मैंने दिया नहीं, ड्यूरिंग कोविड अवॉइड किया कि सर्वे करने आपको बाहर ना जाना पड़े या परेशानी ना हो, इसलिए ज़्यादातर सेकेंडरी रिसोर्स बेस्ड टॉपिक ही दिए हैं कि आपको बुक, लाइब्रेरी और इंटरनेट से मटेरियल लेकर प्रोजेक्ट बनाने में मदद मिलेगी. नेसेसरी फोटोग्राफ्स आप इकट्ठे कर सकते हो टू गिव अ बेटर इंप्रेशन टू योर प्रोजेक्ट. ये थर्ड स्टेप है. फोर्थ स्टेप फिर शुरू होता है कि ड्राफ्टिंग. आपकी स्टडी पूरी हो गई तो आप अपने टॉपिक की ड्राफ्टिंग शुरू करो. जो कुछ भी आपने स्टडी करके समझा वो ही आपको लिखना है, वही आपको केयरफुली ड्राफ्टिंग करनी है. ड्राफ्टिंग आपको कंप्यूटर पर सॉफ्ट कॉपी बनानी है. प्लीज़ मोबाइल पर कोशिश मत करिए, क्योंकि मोबाइल पर आपको वो वर्ज़न, वो इम्प्रेशन नहीं मिलता, वो फाइल ठीक से नहीं बन पाती और उसका प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब दिखता है. तो अगर जब तक आप टेक्निकली उतने साउंड नहीं, मोबाइल पर कंप्यूटर जैसा ही कॉपी जनरेट कर लोगे, तब तक आप कंप्यूटर पर ही ट्राई करो. तो ड्राफ्टिंग शुरू करिए आप. ड्राफ्टिंग में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे अपने टॉपिक का. वैसे रिसर्च मेथड्स पर भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, 2 FC ATKT के बच्चों के लिए भी रेगुलर और ATKT के प्रोजेक्ट्स का है, और रिसर्च मेथड पर. वो 2 वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे पूरे स्ट्रक्चर को, कैसे स्केलेटल को तैयार करते हैं रिसर्च का. तो वो देखने के साथ ही आज मैं फिर से दोहराता हूँ कि आप ड्राफ्टिंग सबसे पहले अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे. सपोज आप किसी लेट्स बी ए स्टोरी टेलर, आपको एक कहानी किसी को सुनानी है, तो कहानी का पहले इंट्रोडक्शन आप दोगे, तो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन उसका लिखो. उसके बाद उस कहानी में का मेन क्रक्स क्या है, उसकी कोई डेफिनेशन है, उसकी कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको लिख देंगे. मीनिंग लिखना है तो मीनिंग लिख देंगे. फिर हम आएंगे उसका मेन बॉडी ऑफ आवर रिसर्च. तो अपने मेन बॉडी रिसर्च को 2-3 क्वेश्चन जो आपने शुरू में फ्रेम किए, उसी के हिसाब से आप टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज डिवाइड कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया था कि हमको काम करना है डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन बॉम्बे ड्यूरिंग ब्रिटिश. तो आप सबसे पहले ब्रिटिश का डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम क्या था, कितने एरिया में उन्होंने कवर किया था, उसका नेचर क्या था, वो तीसरा टॉपिक हो गया. चौथा आपने कर लिया उसका यूज़ कैसे होता था, उसको यूज़ करने के लिए जो लोग होते थे, मैन पावर था, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती थी, वो सारी बातें आपने कवर कर ली. तो
आप अपने टॉपिक को ब्रेक करके चैप्टर वाइज या सब हेडिंग वाइज लिखना शुरू कर दो, तो ये मेन बॉडी की आपकी पूरी ड्राफ्टिंग हो जाएगी। फिर लास्ट में आप कंक्लूज़न लिख सकते हो कि ओवरऑल आपने क्या पढ़ा, क्या समझा और आपकी फाइंडिंग क्या है, आपकी रिकमेंडेशंस क्या है, वो आप लिख सकते हो। कंक्लूज़न एक अच्छा से लिखो। ये सारी चीज़ें करने में आपको आराम से 8 से 10 पन्ने लिखने का मटेरियल मिल जाएगा, और इतना लिखना चाहिए आपको। शुरू में अगर आपको ज़्यादा रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट करना है और अच्छा करना है, तो आप अपना एम्स और ऑब्जेक्टिव्स लिखो इंट्रोडक्शन के बाद। उस प्रोजेक्ट के करने के पीछे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आपके, और मेथड क्या आपने फॉलो किया। रिसर्च मेथड की वीडियो सुनोगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ हैं इसमें। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपका पूरा ओवरऑल टॉपिक और उसका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। अब लास्ट एक एस्पेक्ट है जो ज़्यादा इग्नोर करते हैं हम लोग, जो बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी है, वो है बिब्लियोग्राफी या सोर्स ऑफ रेफरेंसेस। मतलब जहाँ जहाँ से हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो चीज़ें रेफ़र की हैं, उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर आवर एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी इट इज़ एसेंशियल टू साइट द सोर्सेस, नेम ऑफ द पीपल। जो भी आपने बुक पढ़ी, जो भी न्यूज़पेपर पढ़े, मैगजीन से लिए, इंटरनेट से लिए, उनका पूरा सोर्स। अगर इंटरनेट से लिए तो एग्जैक्ट वेबसाइट का आप पूरा URL कॉपी करके वहाँ पेस्ट करो। किस डेट पर आपने उसको एक्सेस किया, किस टाइम पर एक्सेस किया, वो वहाँ पर आप मेंशन करना आपको ज़रूरी है। तो बिब्लियोग्राफी के तमाम फॉर्मेट आते हैं। आप कोई भी एक फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हो। आप इंटरनेट पर ढूंढोगे तो आपको रेडीमेड मिल जाएंगी चीज़ें, कस्टमाइज्ड कि आपको कैसे बनाना है, वही देख के आप एग्जैक्टली बना दीजिए। बट बिब्लियोग्राफी सब में रहना चाहिए। अब प्रोजेक्ट की शुरुआत में अब पहले 2-3 पेज क्या करना है। पहला पेज जो आपका होता है वो तो एक कवर पेज होता है। जैसे कोई बुक आप बनाते हो तो बुक के सबसे पहले पन्ने पर ही तो कुछ नहीं लिखा रहता, उस पर बस बुक का टाइटल, ऑथर का नाम लिखा रहता है। तो आप उसी तरह से अपने प्रोजेक्ट का टाइटल, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, डिवीज़न, और नीचे आपके प्रोजेक्ट गाइड का नाम, जो भी टीचर आपके हैं, जैसे BA BCom BA के हैं डॉक्टर किरण सावंत, BCom का डॉक्टर रवि शुक्ला, टीचर का नाम लिख दो, और उसके नीचे इंस्टीट्यूशन का नाम, RD नेशनल कॉलेज, पूरा ऑफिशियल नाम जो कॉलेज का है वो आपको लिख देना है। पहला पेज होगा। सेकंड पेज जो आता है, जैसे बुक में आप देखो तो एक इंडेक्स रहती है जिसमें वो बताते हैं क्या क्या चैप्टर्स इसके अंदर, वो चैप्टर के नाम लिखते हैं और पेज नंबर लिखते हैं। तो सेकंड पर वो आप एक इंडेक्स बना के लगा दो, इंडेक्स बन गई। या फिर इंडेक्स के पहले आप जो एक्नॉलेजमेंट्स लगाते हैं, आप एक पैरा लिख के एक्नॉलेजमेंट का लगा दो। मैंने ये प्रोजेक्ट के एक्नॉलेजमेंट का भी फॉर्मेट मैंने बताया है रिसर्च मेथड में, या आप गूगल भी कर सकते हो कि एक्नॉलेजमेंट किसी प्रोजेक्ट में कैसे लिखते हैं। एक्नॉलेजमेंट आप लिख दो। एक्नॉलेजमेंट के बाद आप इंडेक्स रख दो। इंडेक्स में आपके इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूज़न, बिब्लियोग्राफी तक सब लिख के कौन से पेज पर क्या है। फ़ोटोग्राफ्स जो आपने लगाए हैं उनका भी बता सकते हो। फ़ोटोग्राफ्स आप अपने प्रोजेक्ट के बीच में बाद में जब PDF फाइल या आपकी तैयार हो जाए तो प्रिंट करके उससे पेस्ट भी कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी है तो सॉफ्ट कॉपी पहले से ही पेस्ट करके साथ में प्रिंट निकाल सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा बल्कि मटेरियल है आपके पास, समझो 100-200 फ़ोटो किसी चीज़ के हैं और आप उसका एक कोलाज बना के प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो लास्ट में एनेक्शर बना के अपने प्रोजेक्ट के एकदम बिब्लियोग्राफी के बाद आप अटैच कर सकते हो और इंडेक्स पे लिख सकते हो कि एनेक्शर 1 दिस फोटोग्राफ और दिस इज रेफरेंस मटेरियल। ये आपको टेक्निकली कर लेना है। तो अब बात आती है कि उसका टाइपिंग वगैरह कैसे होगी। तो टाइपिंग का सिंपल सा है, जो स्टैंडर्ड है कि टाइम्स न्यू रोमन में आपको टाइप करना है, टेल का फॉन्ट में पूरा कंटेंट रहेगा और जस्टिफाई करना है। आप देखो तो दिखता है वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कि वहाँ लेफ़्ट इंडेंटेड, राइट इंडेंटेड, सेंटर इंडेंटेड रहता है और एक जस्टिफाइड रहता है। तो आपको जस्टिफाई करना है अपने पूरे टाइप्ड मटेरियल को। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स जो रहेंगी उनको ठीक से सीरियल नंबर देना है और उनको 14 फॉन्ट में रख के बोल्ड कर देना है, जिससे वो लगे कि वो हेडिंग है और बाकी कंटेंट से अलग है। और एक ही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। अगर हेडिंग आप एक जगह बीच में लिख रहे हो, सेंटर ऑफ द कंटेंट लिख रहे हो, तो पूरी प्रोजेक्ट में आपको सेंटर में ही रहे। अगर आप लेफ़्ट में लिख रहे हो तो लेफ़्ट में ही रखो, राइट में मत रखना। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है।
वर्ड में पूरा मैटर आपका टाइप हो जाए, उसकी एक बार फिर से प्रूफ रीडिंग करो, आप ठीक से उसकी रीडिंग करो, उसका अलाइनमेंट चेक करो, स्पेलिंग एरर चेक करो, और ये सब चेक करने के बाद आपको उसका PDF फाइल कन्वर्ट करना है। PDF कन्वर्ट करना बहुत आसान है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट में सेव करते हो तो जहाँ सेव करते हो तो विंडो के नीचे आपको 2 लाइंस दिखती हैं। एक लाइन में फाइल का नाम आ जाता है, जो नाम आप टाइप करते हो उसी के जस्ट नीचे आप क्लिक करोगे तो वो पूछता है आपसे इन विच वर्जन, इन विच फॉर्मेट यू वांट टू सेव योर मैटर। तो आप उसमें PDF में अपना मैटर सेव कर दोगे, नाम दे दोगे, आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया। प्रोजेक्ट रेडी हो गया तो आपको ईमेल कर देना है। ईमेल करने के लिए एक अलग से ईमेल ID है, fcproject2october 2021 fcproject प्रोजेक्ट OCT अक्टूबर, OCT बस रहेगा अक्टूबर का, OCT 2021 fcproject अक्टूबर 2021@gmail.com। इस पे ही आपको अपना प्रोजेक्ट ईमेल करना है। प्रोजेक्ट ईमेल कैसे करना है? ईमेल ID लिखने के बाद आप अपनी डिटेल ईमेल में लिखना, अपना नाम, प्रोजेक्ट टाइटल, क्लास, डिवीज़न, रोल नंबर, सारी अपनी बेसिक डिटेल्स लिखने के बाद अपना ईमेल ID, फ़ोन नंबर ईमेल में लिख के तब अटैचमेंट ठीक से आप ईमेल में अटैच करके और सेंड करिए। सेंड करने के बाद वेरीफाई कर लेना कि सेंड हुआ है कि नहीं, और सेंड हो जाए तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास आप रख लेना, आगे आपको काम आएगा। तो ये तो बिगिनिंग से लेकर सबमिशन तक का मैंने आपको बता दिया। आप सबमिट कर दोगे, जैसे 7 अक्टूबर हमने टाइम दिया है आपको। सबमिशन के बाद हम आपके प्रोजेक्ट्स को पढ़ेंगे, देखेंगे और फिर एक डेट तय करेंगे आपके वाइवा की, जो 8 मार्क का वाइवा होना है। 12 मार्क का ये पूरा प्रोजेक्ट है आपका, 8 मार्क का आपका वाइवा रखा हुआ है। वाइवा में आप से इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जाएंगे। आपने क्या किया, आपके प्रोजेक्ट में फाइंडिंग क्या है, आपके प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कैसे आपने स्टडी की, क्या क्या मटेरियल कंसल्ट किया, ये सारी चीज़ें करनी है वाइवा के लिए तैयारी। अब कुछ जो PPT का बोलते हैं, एक्चुअली PPT एक प्रेजेंटेशन का मोड है। PPT कोई प्रोजेक्ट सबमिशन का मोड नहीं होता। इट्स अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग योर आइडियाज़ इन फ्यू लाइन्स, इन फ्यू वर्ड्स। आपने जैसे 10-12 पेज 15 पेज का प्रोजेक्ट बनाया तो पढ़ते तो बैठोगे नहीं प्रेजेंटेशन में। वाइवा के टाइम पे आपका 2-5 मिनट का वाइवा होगा, तो इसलिए PPT लोग बना लेते हैं कि मैं स्क्रीन पर PPT डिस्प्ले कर दूंगा, मेरे आइडियाज़ सर को दिख जाएंगे और मैं उस पर अपना कमेंट दे दूंगा। अगर आप नहीं PPT बनाना चाहते तो ठीक है, आप वैसे ही वाइवा होगा वीडियो पर, वैसे ही आके आप अपना वीडियो ऑन करके वाइवा दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं। तो एक डाउट क्लियर रखो कि PDF देना है PPT वैसा कोई विषय नहीं आना चाहिए, PDF ही जमा करना है आपको, ठीक है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हो गया। अब एक अंतिम चीज़ मैं बताऊंगा, कॉपी पेस्ट करने वालों काफ़ी सावधान हो जाओ। प्लेगरिज्म इज़ नॉट अलाउड, इट्स एकेडमिक क्राइम। और ये क्राइम करने पर जिसका मटेरियल आप चोरी करते हो इंटरनेट के समय पे अगर उसका रेफरेंस नहीं देते, सोर्स नहीं बताते, तो वो जो है प्लेगरिज्म में आता है और उस पर पनिशमेंट भी हो सकती है आपको। आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है, और एक्सट्रीम में अगर आप उस प्रोजेक्ट को और कहीं यूज़ करते हो तो जिस बंदे का आपने कॉपी किया बिना उसको क्रेडिट दिए, वो आप पर केस भी कर सकता है, इंक्लूडिंग पुलिस केस। तो इन चीज़ों से हमें अभी से बचना है। एकेडमिक इंटीग्रिटी बताने के लिए हमको ठीक से जो भी सोर्स रेफ़र कर रहे हैं एज इट इज़ उसको नहीं लेना है। उसके लिए गाइडलाइंस होती है कि आप कितना परसेंटेज किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हो एज इट इज़, और वो भी उनका सोर्स बताने के साथ। आप पेज नंबर बताइए, लाइन नंबर बताइए, ऑथर का नाम और पूरी डिटेल, पब्लिकेशन का ईयर, सारी चीज़ें बतानी है। तो ये पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में आई थिंक मैंने डिटेल में ये 25 मिनट की वीडियो में आपको बता दिया है। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं ईमेल ID वगैरह को यहाँ पर इसी वीडियो लिंक के साथ जोड़ दे रहा हूँ। आई विश आप सब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे और रिसर्च के बारे में सीखने का एक अच्छा मौका है। यू विल एन्जॉय डूइंग इट। प्लीज़ डू इट सिंसियरली। वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।